Hello everyone, welcome to Futurecraft Academy YouTube channel, one-stop solution for all psychology exams. In this video of Marks Booster series for CUET exam, we are going to discuss about understanding individual differences in intelligence, nature, measurement, special abilities. Let's see what we are going to learn today. In this video, we will cover meaning of individual differences in intelligence, role of heredity and environment, that is nature versus nurture debate, how intelligence is measured, mental age and IQ concept, intellectual deficiency and giftedness, types of intelligent tests, influence of culture on intelligence, concept and importance of emotional intelligence, creativity, aptitude and special abilities. So let's start by nature versus nurture debate. Here, nature means genes and nurture means environment. इन दोनों में डिबेट ये है कि कौन ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारे बिहेवियर को, हमारी पर्सनैलिटी को शेप करने में. बट एट लास्ट वी विल फाइनली कंक्लूड दैट दे बोथ प्ले a significant role and the interplay of environment and genes shape our behavior. So let's see. Nature, the genetic blueprint. Nature provides the genetic blueprint. Genes जो होते हैं वो एक blueprint provide करते हैं. Intelligence is profoundly influenced by heredity with genetic factor playing a significant role. Our genes provide a foundation potential for cognitive abilities, shaping the predispositions and inherent capacities that individual possess from birth. तो ये ऐसे होते हैं, ऐसे जीन्स जो होते हैं वो हमारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे फाउंडेशंस हैं, हमारी सारी एबिलिटीज़ की फाउंडेशंस प्रोवाइड करते हैं. नर्चर जो है ये हाँ, हमारा ये रोल प्ले करता है कि हम कितना ज़्यादा उस पोटेंशियल को डेवलप कर पाते हैं. जितना अच्छा हमें एनवायरनमेंट मिला है अपनी पोटेंशियल्स को डेवलप करने के लिए, उतना ही ज़्यादा वो पोटेंशियल डेवलप हो पाएगा. Beyond genetics, intelligence is shaped by multitude of environmental factors. These include early childhood nutrition, access to education, socioeconomic status. हो सकता है किसी के अंदर बहुत अच्छा पढ़ने का पोटेंशियल हो, लेकिन उसको कभी ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट ही नहीं मिला, तो वो पोटेंशियल कभी डेवलप नहीं हो पाएगा. सो जीन्स, इस एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि जीन्स जो है एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो जो जीन्स हमारे हैं वो कितना डेवलप हो पाएंगे, उनका कहाँ तक वो हमारे किस लेवल तक जा पाएंगे, वो हमारा एनवायरनमेंट जो है बताता है. A rich and stimulating environment can foster the development of intellectual potential. So psychologists widely agree that intelligence is a complex outcome of both heredity and environment. So both play a significant role in developing intelligence. Let's move forward. In this, there is a research insight. जो रिसर्च हुई थी ट्विन्स के ऊपर, उसके बारे में ये कंक्लूजन निकला कि किस तरीके से जो ट्विन्स हैं, अगर वो सेम जीन से, उनका जेनेटिक फैक्टर कितना रोल प्ले करता है उनके इंटेलिजेंस में, उनका एनवायरनमेंट कितना रोल प्ले करता है, तो उसी के ऊपर ये पूरी स्टडी है. लेट्स सी. So, decades of research have provided compelling evidence for interplay of genetics and environment through studies of comparing the intelligence questions of individuals with varying degree of genetic relatedness, shared environment. So, identical twins के ऊपर जो रिसर्च हुई है उसमें ये बताया है कि शेयरिंग बोथ आइडेंटिकल जीन्स एंड एनवायरनमेंट, जिन बच्चों का जीन्स भी सेम है और एनवायरनमेंट भी सेम है, जीन्स का भी सेम है और एनवायरनमेंट भी सेम है, उनमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आईक्यू कोरिलेशन पाया गया है. दोनों बच्चे जो एक ही जैसे एनवायरनमेंट में भी पले बड़े हैं और एक ही पेरेंट्स से हैं, मतलब कि जिनके पेरेंट्स भी सेम है और एनवायरनमेंट भी सेम है, लर्निंग एनवायरनमेंट भी सेम है, सारे पोटेंशियल्स उनके ऑलमोस्ट इंटेलिजेंस के हाईएस्ट कोरिलेशन है, ऑलमोस्ट सेम है. सो आइडेंटिकल ट्विन्स सेपरेटेड, अब ये तो टुगेदर बॉर्न एंड टुगेदर नरिश्ड वाला केस है, और यहाँ पे बॉर्न जो है एक ही पेरेंट्स के हुए हैं, लेकिन
उन दोनों को अलग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है. इवन व्हेन रेज्ड अपार्ट स्ट्रॉन्ग जेनेटिक टाइज मेंटेन अ हाई कोरिलेशन. तो इससे हमें पता चलता है कि बच्चे जो हैं दोनों ट्विन्स हैं, लेकिन उनको हमने अलग अलग एनवायरनमेंट में बड़ा किया है, लेकिन फिर भी उनके अंदर आईक्यू कोरिलेशन मिला है. तो इससे हमें पता है कि जेनेटिक मेकअप ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया. फिर है फ्रेटर्नल ट्विन्स जो टुगेदर बॉर्न हुए हैं शेयरिंग सिमिलर एनवायरनमेंट, जो अलग हैं लेकिन साथ में पले बड़े हैं. सो शेयरिंग सिमिलर एनवायरनमेंट बट डिफरेंट जीन्स shows moderate correlation. तो सेम एनवायरनमेंट का केस दोनों ट्विंस का सेम है, लेकिन जेनेटिक मेकअप अलग अलग है. सो इसमें क्या हुआ है कि मॉडरेट कोरिलेशन है, हाई कोरिलेशन नहीं है, मॉडरेट है. सिबलिंग्स, कॉमन एनवायरनमेंट एंड सम जेनेटिक ओवरलैप, जो जैसे हमारे अंकल आंटी के जो बच्चे होते हैं जो हमारे ही ब्लड लाइन के हैं, लेकिन एनवायरनमेंट ऑलमोस्ट सेम, एक ही जॉइंट फैमिली में बड़े हो रहे हैं, तो एनवायरनमेंट सेम है लेकिन जेनेटिक मेकअप अलग है. बट जेनेटिक मेकअप में भी कुछ एस्पेक्ट सेम होंगे क्योंकि सेम ब्लड लाइन है. सो कॉमन एनवायरनमेंट एंड सम जेनेटिक ओवरलैप कंट्रीब्यूट टू दिस कोरिलेशन. सो इसमें जो है बहुत कम कोरिलेशन पाया जाता है. अब ये है सिबलिंग्स जो अपार्ट, जो दूर दूर रिश्तेदारों के जो सिबलिंग्स हैं उनकी बात हो रही है. नीदर शेयर जीन्स और नॉर एनवायरमेंट, तो इनमें कोरिलेशन बहुत ही कम है. ना एनवायरमेंट सेम है ना जीन सेम है, तो इनमें कोरिलेशन भी बहुत कम है. अब ये अडॉप्टेड चिल्ड्रन के ऊपर एक स्टडी है. अडॉप्टेड चिल्ड्रन ऑफन शो आईक्यूज मोर सिमिलर टू देयर बायोलॉजिकल पेरेंट्स अर्ली ऑन. तो इसमें ये पता लगा था कि जो बच्चे बाद में जाके अडॉप्ट हो जाते हैं, तो उनका कुछ टाइम तक जो ग्रोइंग ईयर्स होते हैं उस टाइम तक उनका आईक्यू अपने उन पेरेंट्स के से सिमिलर रहता है जिन्होंने उनको जन्म दिया. लेकिन धीरे धीरे जब जब वो किसी नए एनवायरनमेंट में अडॉप्ट हो जाते हैं, नए पेरेंट्स उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, तो धीरे धीरे वो उनका जो प्रॉपर नरिशमेंट और उस एनवायरनमेंट में होता है, इसलिए उनका जो इंटेलिजेंस है वो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस होने लग जाता है, शेप होने लग जाता है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. असेसिंग इंटेलिजेंस फ्रॉम मेंटल एज टू आईक्यू. सो अर्ली मेजरमेंट जो दिए हैं हमारे बाइनेट एंड साइमन 1905 में, तो इन्होंने इल्फर्ड बिनेट एंड थियोडर साइमन developed the first successful method of measuring intelligence. Their work introduced key concept. तो मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है. मेंटल एज ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इंडिकेटिंग द एज ग्रुप whose performance and individual test score must closely matches. तो मेंटल एज वो होती है, क्रोनोलॉजिकल एज वो होती है जो आपकी बर्थ ईयर के अकॉर्डिंग हो. जैसे अगर आपका 2000 का बॉन्ड है और आप अब 2025 चला तो आप 25 ईयर्स के हो, ये आपकी क्रोनोलॉजिकल एज है. लेकिन आपका मेंटल लेवल हो सकता है कि 25 साल से ऊपर का आपने सुना होगा कि हम कभी कभी बोलते हैं अपने फ्रेंड्स को या किसी को कि यार ये ना अपनी एज से बहुत बड़ा लगता है बात करने के तरीके से, बिहेवियर में, मतलब. तो वो होती है मेंटल एज, जिसमें आप तो 25 साल के हो लेकिन आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो हो सकता है 26 ईयर्स ओल्ड या 27 ईयर ओल्ड के बराबर हो. सो वो होती है मेंटल एज. तो इसमें हमेशा यही बताया है कि ये दोनों चीज़ें क्लासिफाई करती हैं किसी की एक प्रॉपर इंटेलिजेंस मेकअप को. मेंटल एज इज इक्वल टू क्रोनिकल एज इंडिकेट एवरेज इंटेलिजेंस. अगर मेंटल एज ज़्यादा है क्रोनोलॉजिकल एज से, तो ये हायर इंटेलिजेंस का एक तरीके से फैक्टर है. और मेंटल एज अगर क्रोनोलॉजिकल एज के बराबर है तो ये एवरेज इंटेलिजेंस दिखाता है. क्रोनोलॉजिकल एज मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से कम है तो ये रिटार्डेड इंटेलिजेंस बताता है कि उनकी इंटेलिजेंस अपने एज के हिसाब से भी डेवलप नहीं हो पाई है. फिर इसी को मॉडिफाई करके कॉन्सेप्ट दिया विलियम स्टर्न ने, जो ये हम मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज का जो कंसेप्ट है, इसको जब हम डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो जो परसेंटेज फैक्टर आता है वो हमारा IQ कंसेप्ट बन जाता है। तो IQ का कॉन्सेप्ट दिया है विलियम स्टर्न ने। ये आपको याद रखना है कि बिनेट एंड सिमन ने, एल्फ्रेड बिनेट एंड थियोडोर सिमन ने मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज का कंसेप्ट दिया है, IQ का कंसेप्ट दिया है विलियम स्टर्न ने। तो IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो इसमें आप ऐसे ही निकालोगे कि मान लो किसी की 25 है मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज 20 है, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका IQ निकल के आएगा। अब IQ किस किस रेंज में लाई कर सकता है? IQ इज इक्वल टू 100, मेंटल एज इक्वल्स क्रोनोलॉजिकल एज, एवरेज इंटेलिजेंस। तो जहाँ पे मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज सेम है वहाँ पे एवरेज इंटेलिजेंस आएगा। जहाँ IQ इज मोर देन 100 वहाँ पे अबव एवरेज इंटेलिजेंस है। जहाँ पे IQ लेस देन 100 है, मेंटल एज इज लोअर देन क्रोनोलॉजिकल एज, बिलो एवरेज इंटेलिजेंस होगा। इसको आगे और डिटेल में देखते हैं हम। ये रही आपकी रेंजेस जिसमें हम IQ अगर 55 से 70 है तो माइल्ड रिटार्डेडनेस कहते हैं। मॉडरेट IQ अगर 35 से 55 है तो मॉडरेट रिटार्डेडनेस है। सीवियर रिटार्डेडनेस है इफ अगर 20 और 35 के बीच में लाई कर रहा है, और प्रोफाउंड IQ रिटार्डेडनेस है अगर बिलो 20 है। ये इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी की कैटेगराइजेशन है। इसमें यही होता है कि आपका बिलो एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है और उसके साथ साथ डेफिसिट्स इन अडेप्टिव बिहेवियर। दिस कंडीशन मैनिफेस्ट्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड एंड इम्पैक्ट्स द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू कोप विद एवरीडे लाइफ। तो कितना सीवियर होगा उसका ये एक तरीके से कैरेक्टराइजेशन है। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस किसे कहते हैं? जिनका एवरेज IQ जो है IQ स्कोर अबव 130 है उन्हें हम गिफ्टेड चिल्ड्रंस कहते हैं, और उनके अंदर डिस्टिंक्ट क्वालिटीज होती है। एक्सेप्शनल ओवरऑल एबिलिटीज अक्रॉस डाइवर्स एरिया। एक्सेप्शनल क्वालिटीज होती है अपनी एज से ज़्यादा मेच्योर, अपनी एज से ज़्यादा बाकी बच्चों से टैलेंटेड होते हैं। सो एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर डोमेन, म्यूजिक, मैथ। अच्छा, टैलेंट और गिफ्टेडनेस में क्या फ़र्क है? टैलेंट मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया में आप बहुत एक्सेल कर रहे हो, बहुत एक्सेप्शनल हो। जैसे म्यूजिक में आप बहुत ही अच्छे हो या मैथ्स में आप बहुत ही अच्छे हो, तो वो आपका टैलेंट है। गिफ्टेडनेस सारे एरियाज को अफेक्ट करता है कि आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है, आपका मैथ्स भी बहुत अच्छा है, आप क्रिएटिव भी बहुत ज़्यादा हो। इस तरीके के जब आपके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, सोशल स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स जब बाकी लोगों के एज के हिसाब से ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो कहलाते हैं गिफ्टेड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट पे। तो ये इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट 1-on-1 तरीके से एडमिनिस्टर किए जाते हैं, और जैसे आपका टेस्ट मैं लूँ तो ये 1-on-1 इंडिविजुअल टेस्ट हो गया। सो इसमें हम आपके आपके सारे ट्रेड्स के ऊपर फोकस करते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप टेस्ट। ग्रुप टेस्ट जो है एडमिनिस्टर्ड इन मल्टीपल इंडिविजुअल साइमल्टेनियसली। बहुत सारे लोगों का एक साथ टेस्ट करना ग्रुप टेस्ट कहलाता है। ये लार्ज स्केल असेसमेंट होता है बट लेस इंडिविजुअलाइज्ड है, क्योंकि हम ग्रुप में एक साथ कर रहे हैं तो हम सारे एस्पेक्ट हर पर्टिकुलर पर्सन के नहीं मेजर कर पाएंगे। सो ये ग्रुप टेस्ट है लेकिन इंडिविजुअलाइज्ड कम है। सो वर्बल, नेक्स्ट है वर्बल टेस्ट। ये ओरल और रिटन वर्बल रिस्पॉन्सेज के बेस पे होता है। जैसे इंटरव्यू है तो वो एक तरीके से ओरल टेस्ट हो गया, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप आंसर करते हो, आपका बात करने का तरीका क्या है, आई कांटेक्ट है कि नहीं, और वर्बल नॉन वर्बल जेस्चर क्या है आपके, वो सब वर्बल टेस्ट बताते हैं। सुटेबल फॉर लिटरेट इंडिविजुअल्स, मेजर एबिलिटीज लाइक वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल रीजनिंग, ये सब तरीके की आपका वर्बल टेस्ट, ये सारे एस्पेक्ट्स को हेल्प करते हैं मेजर करने में। नॉन वर्बल टेस्ट हो सकते हैं पिक्चर टेस्ट, इलस्ट्रेशन, एब्स्ट्रैक्ट सिंबल, कैन बी एडमिनिस्टर्ड अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स एंड लिटरेसी। वर्बल टेस्ट की लिमिटेशन यही है कि आप ये पढ़े लिखे लोगों पे ले सकते हो। नॉन वर्बल टेस्ट, एक आपने किसी को एक सीनरी दिखा दी और बोला कि उसको आप डिस्क्राइब करो कि आपको इसमें क्या दिख रहा है,
तो हर कोई उसे अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगा। तो इस तरीके का नॉन वर्बल टेस्ट हम किसी लिटरेट पे इलिटरेट पे भी ले सकते हैं। कैन बी और अलग अलग कल्चर्स अलग अलग लिटरेसी लेवल के लोगों पे कर सकते हैं। जैसे रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग बाय रिक्वायरिंग सब्जेक्ट टू कंप्लीट पैटर्न्स। तो पैटर्न्स इसमें दो पैटर्न बने हैं, आपने देखा होगा नॉन आजकल एग्जाम में ऐसे तरीके के पैटर्न आते हैं। फिर ऐसा बना हुआ है, अब वो पूछते हैं कि इसमें नेक्स्ट कहाँ होना चाहिए। अब ये फर्स्ट इमेज ये है, सेकंड इमेज ये है, थर्ड कौन सी होनी चाहिए, नीचे 4 ऑप्शन होते हैं। तो उस तरीके का ये नॉन वर्बल टेस्ट है। फिर है परफॉर्मेंस टेस्ट। इसमें कोई भी चीज़ को टास्क को कंप्लीट करने के बाद मेजर किया जाता है कि आपने उसमें कितने अच्छी तरीके से किया है। जैसे सूटेबल फॉर इंडिविजुअल विद लो लिटरेसी और डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड। एग्जाम्पल कोर्स ब्लॉक डिजाइन इन्वॉल्व्स अरेंजिंग कलर ब्लॉक टू मैच अ पैटर्न। तो ब्लॉक्स को एक पैटर्न दिखा दिया जाता है, उस पैटर्न में आप उस पैटर्न को मैच करने के लिए आपको ब्लॉक्स को अरेंज करना है। अगर आपने बिल्कुल जिस तरीके का पैटर्न दिखाया उस तरीके से ब्लॉक्स को अरेंज कर दिया तो इसका मतलब आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ये उसमें कितना आपने टाइम लिया, कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, ये सब चीज़ें परफॉर्मेंस टेस्ट में मेजर की जाती हैं। नेक्स्ट है कल्चरल एंड इंटेलिजेंस, अ डायनेमिक रिलेशनशिप। इंटेलिजेंस इज नॉट कल्चर फ्री कॉन्सेप्ट, इट इज डीपली एम्बेडेड विद इन द शेप ऑफ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो ये बोल रहे हैं कि इंटेलिजेंस और कल्चर अलग नहीं है। इंटेलिजेंस पे कल्चर का इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। कल्चरल वैल्यूज एंड इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजिकली अंडर डेवलप्ड सोसाइटी ऑफन प्रायोरिटाइज सोशल एंड इमोशनल कॉम्पिटेंस सच एज कम्युनिटी कोऑपरेशन एम्पैथी एंड प्रैक्टिकल सर्वाइवल स्किल। सो आपने देखा होगा ये पहले जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं थी तो लोग एक दूसरे के साथ बैठ के बातें करते थे, स्टोरी सुनते थे एक दूसरे को, अपना जो भी बातें रहती थी वो एक दूसरे से शेयर करते थे। तो सोशल स्किल्स बहुत हाई थी उस टाइम पे। तो सोशल स्किल्स ऐसी सोसाइटी में, टेक्नोलॉजिकल अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज में सोशल स्किल्स और इमोशनल स्किल्स हाई होती हैं। इमोशनल सपोर्ट होता है, एक दूसरे की बातें जब आप दूसरों से शेयर कर रहे हो तो वो सब जानते हैं और आपको एक तरीके से इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये इस पर्टिकुलर सोसाइटी में इमोशनल और सोशल स्किल्स बहुत हाई होती हैं। टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी टेंड टू वैल्यू रीजनिंग। अब जो टेक्नोलॉजी बेस्ड सोसाइटी है जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, तो इसमें रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंडिविजुअल अचीवमेंट, ये सब चीज़ें बहुत हाई होती हैं। ये सब चीज़ों पे फोकस किया जाता है और ऐसे लोगों के इंटेलिजेंस एस्पेक्ट, रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंडिविजुअल अचीवमेंट, इन सब के बेस पे बहुत हाई होते हैं। इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन, अ होलिस्टिक व्यू। सो इंडियन ट्रेडिशन में हमारे और वेस्टर्न ट्रेडिशन में क्या फ़र्क है इन कॉन्ट्रास्ट टू वेस्टर्न एम्फेसिस। वेस्टर्न में कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। इंडियन ट्रेडिशन में इंटेलिजेंस मल्टीफेसेटेड है, ब्रॉडर रेंज में डिवाइड करते हैं और हम इसको एक होलिस्टिक वेलबींग एंड सोशल हार्मनी के बेस पे मेजर करते हैं। कॉग्निटिव कैपेसिटी में आता है sensitivity to context, ability to understand and discriminate, problem solving, effective communication. Social competence में आता है respect for social order, commitment to elders, young and needy, consideration for others perspective। ये तो आपने देखा ही है कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ में जो है जैसे ही बच्चा ये अपना हाई स्कूल पास करता है तो उसको अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, जॉब करने लग जाते हैं, अपने खर्चे खुद उठाने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये होता है कि जैसे ही बच्चे ने इंडियन सोसाइटी में तो हम पेरेंट्स बहुत टाइम तक बच्चे को सपोर्ट करते हैं, बहुत टाइम तक उनका साथ देते हैं। सो इमोशनल कॉम्पिटेंस, सेल्फ रेगुलेशन, मॉनिटरिंग इमोशंस, ऑनेस्टी, पोलाइटनेस, गुड कंडक्ट, सेल्फ इवैल्यूएशन, एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस। घर में अगर कोई बिजनेस फैमिली से मतलब अगर आप कोई बिजनेस फैमिली से बिलोंग कर रहे हो तो ये सारे इंटेलिजेंस एस्पेक्ट बचपन से हम देखते हैं कि किस तरीके से पापा या मम्मी जो है बिजनेस चला रहे हैं, तो हमारे अंदर ये सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती हैं। सो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है एक्सपैंड्स द ट्रेडिशन definition ऑफ इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सप्रेस
regulates emotion, it is increasingly recognized as crucial for life success. इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है एक पर्सन की पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए, और ये आज के टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सेल्फ इमोशनल इंटेलिजेंस में इंडिविजुअल्स के क्या क्या एस्पेक्ट्स आते हैं: सेल्फ अवेयरनेस, सोशल परसेप्शन, कॉग्निटिव इंटीग्रेशन, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ रेगुलेशन. तो ये सारे एस्पेक्ट्स आते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के. So that's all for today's video. Do like, share and subscribe and watch full series to ace your exam, and stay tuned with Futurecraft Academy channel.